السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حق سچ کی آواز اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری اللہ فانی۔ ناظرین، آج میرے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں۔ یہ ایسی شخصیات ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ریاض احمد جویہ صاحب، جو میزان بینک کے ہیڈ آف ایڈمن ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں نواب احمد حسن خان لکھویرہ صاحب، جو کہ ضلع بہاول نگر کی سیاسی بہت بڑی قائد رکھنے والی شخصیت ہیں۔ آج میرے ساتھ یہ دونوں حضرات موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں، ان کا انٹرویو لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، معلومات لیتے ہیں۔ پہلے نواب احمد حسن خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ انہوں نے سیاست کا آغاز کیسے کیا، کیسے ان کو یہ شوق لگا، کب انہوں نے سیاست کا آغاز کیا اور کتنے الیکشن انہوں نے زندگی کے اندر لڑے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، میں نے اپنے سیاست کا آغاز یوسی شہرفید سے کیا، بلکہ ہم نے اکٹھا ہی کیا۔ اس وقت کونسلر کا الیکشن لڑ رہے تھے ریاض خان اور میں، ناظم کا الیکشن اکٹھا ہی ہم نے کیا۔ اس کے بعد پھر تحصیل چشتیاں کے چیئرمین بنے مارکیٹ کمیٹی کے۔ اس کے بعد پھر 240 اب حلقہ جو پہلے 280 تھا، وہاں سے ایم پی کا الیکشن 2 لڑے ہیں جی۔ یہاں سے میں نے اپنا اسٹارٹ لیا تھا جی۔ الیکشن ماشاءاللہ آپ نے لڑا، ایم پی اے کا 2 دفعہ آپ بتا رہے ہیں کہ الیکشن آپ نے لڑا، تو آپ نے کون سی پارٹی کی طرف سے لڑا یا آزاد لڑا، اور تقریباً کتنے ووٹ آپ نے لیے، کون سی پوزیشن پر آپ آئے، کچھ بتائیں گے آپ ہمیں؟ جی، پہلا کیونکہ میں پہلے نون لیگ میں تھا، پھر ٹکٹ مجھے نہ مل سکا پارٹی کی طرف سے، تو پھر میں نے اعجاز الحق صاحب کے ساتھ مل کے ضیاء لیگ سے پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا، تو 5000 کے ووٹ کے ڈیفرنس سے میں رہ گیا۔ کون سے سال میں؟ یہ پچھلا الیکشن 2013 والا، ہاں جی۔ تو اب جو انڈیپینڈنٹ پھر لڑا، تو پھر وہی 4-5 ہزار سے ہم نے تو پیچھے رہ گئے۔ الحمدللہ پھر ورک کر رہے ہیں، اب دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اس دفعہ انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے، اور جس طرح دوست میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ اس دفعہ میں الیکشن نکال جاؤں گا جی۔ اب میں کیونکہ کاف لیگ میں ہوں، انشاءاللہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر اب الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھا نواب صاحب، آپ ہمیں تھوڑے سے یہ بتائیں کہ آپ علاقہ کے اندر لوگوں کے ساتھ کس طرح رابطہ رکھتے ہیں، اور کیسے آپ اپنا ووٹ بینک بناتے ہیں، کیسے آپ کا رابطہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ جی، اب پہلے تو رابطہ بڑا مشکل ہوتا تھا، اب تو موبائل فون ہے جی، تو سوشل میڈیا پہ بھی ویسے میں کم یوز کرتا ہوں، لیکن رابطہ تو پھر اب بڑا آسان ہو گیا۔ تو باقی میرا ایک اپنا سٹائل ہے کہ دکھ سکھ اٹینڈ کرنے اور لوگوں کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہنا، حلقے میں پھرتے رہنا، اور حلقے میں درمیان میں نے اپنا ایک وہ سیٹ اپ بھی بنایا ہوا ہے چک مدرسہ میں، وہاں میں زیادہ بیٹھتا ہوں۔ تو الحمدللہ رابطے کے لحاظ سے میرا خیال ہے کہ میں سب سے آگے جا رہا ہوں انشاءاللہ ضلع بہاول نگر میں، بلکہ لوگ مثال دیتے ہیں۔ نواب صاحب، آپ خاندانی لوگ ہیں، شہر فرید کے اندر آپ نواب خاندان سے آپ کا تعلق ہے، ذمہ دار ہیں بہت بڑے، تو ہمارے علاقے کے لیے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے سیاست کے اندر آنے کے لیے۔ ہم اکثر طور پر لوگوں کو چنتے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ علاقے کے تقریباً ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں ایم این اے ایم پی اے ہمارے اس حلقے میں کبھی نہیں بڑھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ آئیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیسے لوگوں کو ایم این اے اور ایم پی اے اور لوگوں کو نمائندہ ہونا چاہیے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس حلقے کی نمائندگی، اس ایریے کی نمائندگی اٹھاڑ کی بالکل نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ اٹھاڑ کے اپنے جو ہمارے ذمہ دار ہیں، جو لینڈ لارڈ ہیں، جو فیڈرل ہیں، ان کی کمی کوتاہی میں کہوں گا، کیونکہ اگر یہاں سے کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو ایک بندہ کوشش کرتا ہے تو درجنوں اس کے ٹانگ کھینچنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ نے مثال تو سنی ہوئی ہے نا کہ جس علاقے میں عدل انصاف اور میرٹ نہیں ہوتا، پھر وہ تباہی کے دانے پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہی حال ہے کہ جب تک آپس میں اتفاق پیار نہیں ہے، ورنہ اتنے زیادہ بڑے لوگ اور زیادہ آبادی رکھنے والا ایریا، اس کے باوجود نمائندگی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سسٹم کا کوئی گناہ نہیں، ان کی اپنی کمی کوتاہی ہے۔
हमारी अपनी कमी कुताही है कि हम एक दूसरे को कबूल ही नहीं करते। अच्छा, आपने नवाब साहब कहा कि जो है इलाके के अंदर लोग जो है एक अगर बंदा आगे निकल रहा होता है दूसरे लोग उसकी टांगें खींचते हैं, कबूल नहीं करते उसको। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह 2 इलेक्शन लड़ चुके हैं एमपी के, आगे भी आपका इलेक्शन लड़ने का इरादा है, तो आप ये कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं ताकि ये इत्तेहाद हो जाए लोगों का, ताकि कोई एक नुमाइंदा जो है अच्छी तरह से निकल आए इस इलाके से और लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो इन लोगों को मिलाने का ये जो नवाब हजरात हैं, ज़िम्मेदार हैं, साहबजादे हैं या बडेरे हैं या जितने भी हमारे इलाके हिठाड़ के अंदर लोग जो हैं ज़िम्मेदार हैं, इनका अगर इत्तेहाद हो जाए तो कोई ऐसी है आपके ज़हन में अंदर कोई ऐसे सिस्टम? जी जी, आजकल तो जंगें भी ख़त्म हो गई, वो भी टेबल टॉक पे आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर सब मिलकर बैठे, इस इलाके की खातिर बैठे हैं, अपनी खातिर नहीं, तो जिसको समझते हैं कि ये पूरे इलाके को साथ लेके चल सकता है, तो क्यों ना उसके पीछे खड़े हो जाएं, उसकी मदद करें, उसके साथ शाना बशाना चलें। तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये मुझे होता नज़र नहीं आ रहा जो इख्तलाफ, ऐसे इख्तलाफात भी नहीं है कि इकट्ठे एक टेबल पे ना बैठ सकें। बस वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चुदरा अड़दर रोला है, यहाँ नवाबी का रोला है, एक दूसरे को कबूल ही नहीं करते। और कर लें तो मैं समझता हूँ कि आपने जिस तरह कहा है कि यहाँ जो, क्योंकि मैं तो हल्का 240 है उधर से अपनी सियासत कर रहा हूँ, आप इस हल्के की 41 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से 3-4 ख़ानदान इकट्ठे हो जाएं, शाह साहबान, साहबजादगान, बडेरे साहब, लखवेरे साहबान, और ये इकट्ठे हो जाएं, तो मैं नहीं समझता कि टिकट भी इनके घर ना आए और यहाँ से आराम से जीत ना सके, क्योंकि 50% पे हम बैठे हैं ना जी। तो बाकी शहर का वोट है, वो मैं तो रहा हूँ कमेटी का चेयरमैन, तो शहर वाले तो जितने हमें इठाड़ वालों को कबूल करते हैं और जितनी हमारी इज्जत करते हैं, मैं नहीं समझता कि ये सीट हाथ से निकल जाए। लेकिन जो पहले लोग सियासत कर रहे हैं वो एंट्री नहीं होने देते इन लोगों की, और आपस में इनको डिवाइड किया हुआ है। वो डिवाइड एंड रूल का जो है वो सिस्टम इधर तो अभी भी चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और अगर ये सब 3-4 ख़ानदान इकट्ठे बैठ के एक फ़ैसला कर लें तो मैं समझता हूँ, और मेरा ख्याल है कि इकट्ठे होने वाले आप ज़्यादा हैं, न्यू जनरेशन पढ़ गई है, एहसास महरूमी है, जब वो सब सामने आ गया, लोग भी कहते हैं कि यार क्या कर रहे हो आप एक दूसरे को कबूल नहीं कर रहे हो, नुकसान पूरे एरिया का कर रहे हो। तो नई जनरेशन तो अब अच्छा सोच रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अब हो जाएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि अब लड़ाने वाले थोड़े रह गए हैं, इकट्ठे होने वाले मेरे ख्याल में मेजॉरिटी में आ रहे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बातें की नवाब साहब ने। हम तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह करे कि ऐसा सिस्टम को बन जाए कि हमारे इलाके वाले ज़िम्मेदार जो हैं इकट्ठे हो जाएं, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो, हमारा अपना नुमाइंदा हो, हमारे घर में जो है नुमाइंदा हो, ताकि हम जल्दी उसके पास पहुंच जाएं और मसाइल जल्दी जो हैं वो हल हो जाएं। अभी मैं आता हूं अपने भाई रियाज अहमद जोया साहब के साथ, जो हेड ऑफ़ एडमिन हैं कराची में मिज़ान बैंक के, तो उनसे बात करते हैं ताकि जो है वो भी हमें कुछ मुस्तफ़ीद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप तो माशाल्लाह कराची में रहते हैं, इधर बहुत कम आते हैं हमारे इलाके के अंदर, तो आप जो है सियासत के बारे में कुछ जो है हमें बताएं कि हमारे इलाके में कैसी सियासत होनी चाहिए। मैं रहता तो कराची में हूँ, लेकिन मेरा दिल इधर इस इलाके में रहता है, क्योंकि यहीं पैदा हुए हैं और यहीं सब कुछ अच्छा लगता है और यहीं की सियासत अच्छी लगती है। मेरा भी यही है। अब चूँकि हम लोग ने पूरी दुनिया देखी है, मैंने तो ख़ास तौर पे तो मैंने देखा है कि जो दुनिया ने तरक्की की है उसका वाहिद जो मेरी समझ में आया कि लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करते, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचते, हर बंदा अपने काम से काम रखता है, इसलिए वो कामयाब हैं, दुनिया पर रूल कर रहे हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना आपस में लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे की अदावत दुश्मनी, इस चक्कर में हम लोग सबसे पीछे हैं। हमसे तो जो ये जिनके 10-10 एकड़ थे हमारे लोग तो माशाल्लाह ज़िम्मेदार हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा दिया हुआ है, लेकिन अगर वो अच्छी सियासत करें, मिलजुल के रहें, तो ऐसी जैसे नवाब साहब ने कहा कि बिल्कुल यहाँ से कोई और जीत ही नहीं सकता कि हमारे अगर लोग इकट्ठे हो जाएं। तो मेरी तो दुआ है और मैं सब हमेशा कोशिश भी करता हूँ, सब लोगों से रब्ता भी करता हूँ कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं। ये तो अभी भी कम से कम मेरे होते हुए कम 8-10 इलेक्शन हो चुके हैं, तो अगर ये बारियां बांट लें कि एक दफ़ा साहबजादे
को दे दें, एक दफ़ा लखवेरों को दे दें, एक दफ़ा बडेरों को दे दें, एक दफ़ा शहीदों को दे दें, तो अब तक ये सबका एक एक नुमाइंदा हो चुका होता और ये इस इलाके के काम भी हो चुके होते। अब इनकी लड़ाई की वजह से, इनकी नाइतफाकी की वजह से, इनकी नाचाकी की वजह से बाहर के लोग आते हैं, वो यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं, फिर वो अपने इलाके में काम करते हैं, उनका तो यहाँ से कुछ होता नहीं है। अब तक जितने भी हमें मिले हैं यहाँ के सियासतदान, सब इम्पोर्टेड मिले हैं बाहर से, लोकल कोई भी नहीं आया। अहमद हसन हमारा भाई है, हमारे साथ पढ़ा है, हमारी तो खुशी थी कि ये इसको यहीं से ही लड़वाते, इलेक्शन लड़वाते और यहाँ ये बिल्कुल कामयाब हो जाता और हमारी दुआएं और सब साथ होती और यहाँ के काम होते। लेकिन बहरहाल फिर भी इसने यहाँ की नचाकियों में से एक अपनी नई जगह पे इसने अपनी शनाख्त बनाई है, हम इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं और हम दुआगो भी हैं और हम इसकी मदद भी करेंगे और कि ये अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। कोई तो जाए ना हमारे इलाके में से, वो जाएगा तो सब इलाके की इज़्ज़त होगी ना। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा अल्लाह ताला भी ये कहता है कि आप मेहनत करें, हसद ना करें, जो भी आगे जाए ना उसके नक्शे कदम पे चलें ताकि लोग हो। लेकिन मैंने देखा यहाँ लोग टांगे खींचने वाले कम हैं, ज़्यादा हैं और बढ़ाने वाले कम हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी हमारी दुआ है, हमारा इलाका है, हमें यकीन है, जैसे नवाब साहब ने कहा कि अब नई पौध जो है वो पढ़ रही है और आला तालीम हासिल कर रही है, उनमें शायद पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नई सोच पैदा हो रही है। तो मेरे ख्याल है हो सकता है इस इलेक्शन में या आगे चल के हम इकट्ठे हो जाएं और जब इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उसकी बरकत होती है। वो कहते हैं ना 1-1, 2-11 हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे भी उम्मीद है कि जिस दिन भी हम इकट्ठे हो गए और हमने कोशिश कर ली तो कामयाबी हमारा मुकद्दर चुमेगी। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया बरियाज साहब की बात भी और नवाब साहब की। मेरा एक मैसेज है आप हजरात के लिए जो भी देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, कि इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक अगर होगा तो चाहे छोटी भी कौम होगी तो वो बहुत बड़ी बन जाएगी इत्तेफाक के अंदर। तो हमारा अगर इत्तेफाक हो जाए इलाके का, तो अगर ये नवाब साहब बन जाते हैं MP या MN, तो अगर ये अपने घर में कोई काम लेकर आएंगे तो फिर भी उसका फ़ायदा होगा, दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो अपना अपना होता है, चाहे मुखालिफ हो जाए चाहे जो भी हो जाए, तो हमें अपना जो है अपना नुमाइंदा चुनना चाहिए, उसको आगे लेकर आना चाहिए ताकि उसका फ़ायदा हमें भी हो।